ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੱਚਿਓ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਲੈਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਯੋਗਿਕ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਮੀਨਸ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਲੈਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰਲਸ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚਤੁਰਭੁਜ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਲੈਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਭੁਜਾਵਾਂ ਤੇ ਦੋ ਕੋਣਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਚਤੁਰਭੁਜ ਜੋ ਹੈ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। मीन्स जे सानू 3 साइड्स और 2 एंगल्स गिवन होन तो ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਓ ਸਿੱਖੀਏ। ਬੱਚਿਓ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚਤੁਰਭੁਜ ABCD ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ AB ਬਰਾਬਰ 4 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ, BC ਬਰਾਬਰ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਤੀਸਰੀ ਭੁਜਾ CD ਬਰਾਬਰ 6.5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ ਤੇ ਕੋਣ B ਬਰਾबर 105 ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਣ C 80 ਡਿਗਰੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਵਿਲੱਖਣ ਮਾਪ ਹਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਰਚਨਾ ਦੇ ਭਾਗ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਟੈਪਸ ਆਫ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਜਦ ਅਸੀਂ ਸਟੈਪਸ ਆਫ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਲਿਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜੋ ਹੈ ਸਟੈਪ ਆਫ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਫ ਚਤੁਰਭੁਜ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਰਫ ਚਤੁਰਭੁਜ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਾਪ ਦੇ ਰੱਖੇ ਹਨ ਉਹ ਲਿਖੋ, ਦਿੱਤੇ ਮਾਪ ਲਿਖੋ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਰਫ ਚਤੁਰਭੁਜ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਕੇਲ ਔਰ ਚੌਕ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਰਫ ਡਾਇਗਰਾਮ ਆਪਣਾ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਰਫ ਡਾਇਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਭੁਜਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਮੈਂ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਸਾਈਡਸ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕਲੋਜ਼ ਫਿਗਰ ਬਣਾਵਾਂਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰ ਆ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰ ਦੇ 4 ਵਰਟਿਸਸ ਹਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ 4 ਵਰਟਿਸਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੇਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਤਾ AB, ਨਾਓ C ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ ਤੇ D ਇੱਧਰ ਆਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚਤੁਰਭੁਜ ਨੂੰ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਜਾਂ ਐਂਟੀ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਨੇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਮਾਪ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ AB ਕਿੰਨਾ ਹੈ 4 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, BC ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, CD ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ 6.5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਐਂਗਲ B ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਗਿਵਨ ਹੈ 105 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਐਂਗਲ C ਕਿੰਨਾ ਗਿਵਨ ਹੈ 80 ਡਿਗਰੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਿੰਨ ਭੁਜਾਵਾਂ ਤੇ ਦੋ ਕੋਣ ਦੇ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਆਫ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬੇਸ ਬਣਾਉਣਾ। ਤਾਂ ਬੇਸ ਕੋਈ ਵੀ ਭੁਜਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਟ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਲਈ ਇੱਥੇ BC ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬੇਸ ਲਵਾਂਗੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਫੁੱਟੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ यानी कि स्केल की हेल्प नाल जो है मैं एक भुजा BC बराबर 5 सेंटीमीटर खिंचो। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ BC with the help of scale and pencil। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਭੁਜਾ ਜੋ ਹੈ 5 सेंटीमीटर ਡਰਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ BC। This is one side of quadrilateral and its measure is 5 centimeters. Now the next step is ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਆਪਣੇ ਰਫ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ BC ਭੁਜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋ ਕੋਣ ਗਿਵਨ ਹਨ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜੋ ਬਿੰਦੂ B ਹੈ ਹੁਣ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕੋਣ ਮਾਪਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ, ਕਿਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ, ਕੋਣ ਮਾਪਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਣ ਮਾਪਕ ਮੀਨਸ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਂਗਲ XBC ਕਿੰਨਾ ਡਰਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕਰਾਂਗੇ 105 ਡਿਗਰੀਜ਼ ਬਣਾ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਿੰਦੂ C ਉੱਥੇ ਵੀ ਐਂਗਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿਹੜਾ YCB equals to 80 degrees ਬਣਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਦੋ ਐਂਗਲਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਐਂਗਲ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰ। ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡਾ 0 ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੋਇਨਸਾਈਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਵਿਦ BC ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰ ਤੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਸਾਡਾ ਜੋ ਹੈ 105 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ ਜੋ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਮਾਰਕ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ मैं with the help of scale and pencil जो है मैं एक इस
ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ B ਨਾਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ एंगल है XBC इक्वल्स टू 105 डिग्रीज जो है वो आ गया है। हुण जो मैं नेक्स्ट स्टेप करना की है कि मैं इसी प्रोटेक्टर की हेल्प नाल जो है एक होर एंगल कंस्ट्रक्ट करना है कितने डिग्रीज 80 डिग्रीज क्योंकि पॉइंट सी ते होना है तो मैं BC नु कोइंसाइड कितना विद 0 तो जो मेरा 80 डिग्रीज है वो एंगल आ रहा है इत्थे बिकॉज़ हुण साडा 0 दा स्केल अपर है ता जिवें तुहानू पता है कि तुसी किवें कंस्ट्रक्ट करदे हो एंगल ता उस अकॉर्डिंग जो है असी एंगल 80 डिग्री जो है वो कंस्ट्रक्ट किया है ते हुण जो है विद द हेल्प ऑफ स्केल एंड पेंसिल जो असी पॉइंट मार्क किया उन्होंने सी वर्टेक्स दे नाल असी जॉइन कर देना है। दिस इज आवर एंगल YCB इक्वल्स टू 80 डिग्रीज। नाउ हुण असी अपने तीन माप जो है ऑलरेडी इस डायग्राम दे विच यूज कर चुके हैं 5 सेंटीमीटर 2 एंगल्स यूज कर चुके हैं केड़े केड़े 105 डिग्री एंड 80 डिग्रीज। सो हुण जो है साडा नेक्स्ट स्टेप होएगा कि जो साडे बाकी दो माप बच गए सी उन्हां नू किवें इस डायग्राम दे विच कंस्ट्रक्ट करना है। तो असी की करांगे कि असी जो है बिंदु B नू सेंटर लैके केंद्र मान के ते देखो B तो हुण कितने सेंटीमीटर दी तुसी कोई लाइन खिंच सकते हो वो है 4 सेंटीमीटर का सी इनू किवें ड्रॉ करांगे चापा लगा के केंद्र मान के 4 सेंटीमीटर दी चाप लगाओ जो के किरण किसनु BX नू बिंदु किदे ते कटेगी A ते कट दी है। इसी तरह हुण असी नेक्स्ट भी देख लेंगे कि जिहड़ी साडा नेक्स्ट है जो साडा नेक्स्ट मेजर रहेगा उन्हें किवें करना है। इसी तरह बिंदु C नू केंद्र मान के ते असी 6.5 सेंटीमीटर दी जो है एक चाप लगानी है मतलब एक आंख लगानी है जो के किरण CY नू किदे ते कटेगी बिंदु D उत्ते कट दी है। चलो हुण असी इनू अपनी डायग्राम दे विच कंस्ट्रक्ट करते हैं। ते सानू पता है कि असी आर्क्स लगाने लई या चापा लगाने लई किहदी यूज करते हैं असी प्रोटेक्टर का यूज करते हैं। तो असी प्रोटेक्टर को यूज करके जो है पहला फर्स्ट है B तो असी 4 सेंटीमीटर की चाप लगानी है आंख लगानी तो मैं अपनी जो है प्रोटेक्टर 4 सेंटीमीटर वाइड ओपन कर ली है B के ऊपर मैं रखूंगी तो मैं एक आंख लगा दूंगी। नाउ दिस पॉइंट जेड़ा ये पॉइंट BX से आया है इसको असी नाम देना है A। इसी तरीके नाल जो है असी 6.5 तक अपनी जो है कंपास जो है वो ओपन करनी है। तो देखो इत्थे मैं अपनी कंपास जो है 6.5 तक ओपन कर ली है। तो जो हुण मैं C तो लगाना है जो नेक्स्ट अपनी आंख लगानी है मैं C के ऊपर अपनी कंपास का पॉइंट रखिया तो मैं इत्थे एक आंख ड्रॉ करती है। नाउ दिस आर्क विल मीट CY एट पॉइंट D। तो हुण मेरे को दो पॉइंट्स आ गए हैं CA एंड D। तो हुण मैं इनू की करना है मेरा नेक्स्ट पॉइंट और प्रोबेबली लास्ट पॉइंट क्या हैगा कि बिंदु C अते सॉरी बिंदु A अते D नू मिलाओ असी विद द हेल्प ऑफ स्केल जो है असी जो साडे कोले प्राप्त होए हैं बिंदु A अते D असी इन्हां नू किदे नाल मिला देना है स्केल नाल मिला देना है। तुसी देखो इत्थे मैं स्केल नाल जो है A और D में मिला देते हैं। तो हम जो तुसी देखो ध्यान नाल तो ये साडे कोल एक क्वाड्रिलेटर बन चुकी है केड़ी ABC एंड D। तो ये जो साडे कोल आईया सी आर्क से कितने सेंटीमीटर सी 4 सेंटीमीटर और ये सी 6.5 सेंटीमीटर। सो जो हम असी अपने सारे माप सीगे वो यूज कर चुके हैं। तो
ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾप्त ਚਤੁਰਭੁਜ ABCD ਲੋੜੀਂਦੀ ਚਤੁਰਭੁਜ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ with the help of these measures ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰਲ ਹੈ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕਰ ਲਈ ਹੈ और ਇਹ ਸਟੈਪਸ ਆਫ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹਨ। ਬੱਚਿਓ ਸਾਡਾ ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚਤੁਰਭੁਜ ਡੀਅਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ DE ਬਰਾबर 4 सेंटीमीटर है, EA बराबर 5 सेंटीमीटर, AR बराबर 4.5 सेंटीमीटर एंड एंगल E जो है 60 डिग्रीज है, एंगल A जो है 90 डिग्रीज है। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ 5 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੇਜਰਸ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਰਚਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਰਚਨਾ ਦੇ ਭਾਗ। ਐਜ਼ ਯੂਜੂਅਲ ਸਾਡਾ ਫਰਸਟ ਜੋ ਹੈ ਰਚਨਾ ਦਾ ਭਾਗ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਫ ਚਤੁਰਭੁਜ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ जो है ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਮਾਪ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖ ਦੇਣੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜੋ ਫਰਸਟ ਸਟੈਪ ਆਫ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਉਹ ਸੇਮ ਰਹੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੈਨਸਿਲ मैं चौक और स्केल ਨਾਲ ड्रॉ कर रही हूं तो ਤੁਸੀਂ भी जो है अपने पेंसिल और स्केल ਨਾਲ जो है एक कोई भी कोऑर्डिनेटर ड्रॉ कर सकते हो ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਜਰਸ ਗਿਵਨ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਦੇਣੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ मैं जो है अपनी अकॉर्डिंग कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग जो है मैं एक डायग्राम जो है ड्रॉ कर रही हूं। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ मैं नाम देना नेम करना है तो मैं ਇੱਥੋਂ ਹੀ स्टार्ट ਕਰਾਂਗੀ DEA and this is R। ਹੁਣ मैं 4 वर्टिसेस ਨੂੰ नेम करता है इस क्वाड्रिलेटरल ਦੀ। सो ਸਾਡੇ ਕੋਲ जो गिवन मेजर्स है ਉਹ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦੇਣੇ हैं। ਸਾਡੇ ਕੋਲ सॉरी ਇੱਥੇ जो है DE कितने सेंटीमीटर दे रखा है 4 सेंटीमीटर, EA कितने सेंटीमीटर दे रखा है 5 सेंटीमीटर, AR कितने दे रखा है 4.5 सेंटीमीटर। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ एंगल्स गिवन है 4 साइड्स हो गया। ਸਾਡੇ ਕੋਲ एंगल गिवन है एंगल E is equals to 60 डिग्री and angle A is equals to 90 डिग्री। सो ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰ। ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਸਾਈਡਸ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਈਡ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗੀ ਹੁਣ पहला मैं साइड लूंगी EA। सो मैं लिखूंगी कि फुटे की सहायता नाल स्केल की हेल्प नाल विद द हेल्प ऑफ स्केल असी की करना है सहायता नाल भुजा जो है EA बराबर 5 सेंटीमीटर बनाओ। तो मैं इस स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग जो है ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਾਈਨ ਜੋ ਹੈ ਡਰਾ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਸਕੇਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਟਰਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜੋ ਹੈ EA equals to 5 सेंटीमीटर ड्रॉ कर ली है। सो दिस इज माय EA। जो ਇੱਥੇ ਦੋ एंड्स आए हैं ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ है EA। ਇਹ ਕਿੰਨੇ सेंटीमीटर है 5 सेंटीमीटर। सो ਸਾਡਾ फर्स्ट स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन ये है कि ਅਸੀਂ रफ डायग्राम ड्रॉ की। सेकेंडली ਅਸੀਂ एक साइड जो है कंस्ट्रक्ट कर ली है। थर्ड जो हैगा वो की होएगा जिवें पिछली बार ਅਸੀਂ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋ ਐਂਗਲਸ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕਰੇ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ ਬਿੰਦੂ E ਉੱਤੇ ਕੋਣ ਮਾਪਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਐਂਗਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ 60 डिग्री ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੇਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ XEA equals to 60 डिग्री ਬਣਾਓ ਅਤੇ इसे तरह जो है असी बिंदु A उत्ते कोण मापक यानी कि प्रोटेक्टर दी हेल्प नाल विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर असी जो है एक एंगल YAE equals to 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट करांगे। सो साडा थर्ड स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग असी दो एंगल्स कंस्ट्रक्ट करने। सो इत्थे मैं क्या करूंगी कि मैं प्रोटेक्टर लेके EA नु जो है कोइंसाइड कर दूंगी 0 नाल ते फर्स्ट एंगल जो ਅਸੀਂ E ਦੇ ड्रॉ करना है कितने डिग्रीज है 60 डिग्री। सो दिस इज माय 60 डिग्री। ਹੁਣ स्केल ਨਾਲ जो मैं पॉइंट ऑब्टेन कर रहा है उसਨੂੰ मैं E ਨਾਲ ज्वाइन कर देना है। तो ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ मैं E जो भी ਸਾਡੇ ਕੋਲ पॉइंट आया मार्क करिਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ज्वाइन करते हैं। नाउ दिस एंगल XEA is equals to 60 degrees।
नाउ ਅਸੀਂ ਹੁਣ नेक्स्ट एंगल जो है ड्रॉ करना है। सो मैं फिर ਹੁਣ AE ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ मैं कोइंसाइड कर लिया विद 0 डिग्रीज। नाउ मेरा जो एंगल है 90 डिग्रीज वो देखो ਇੱਥੇ आ रहा है, दिस इज माय 90 डिग्री एंगल। सो ਹੁਣ मैं विद द हेल्प ऑफ स्केल जो है ये ज्वाइन कर लेना है। सो दिस इज AE, सॉरी दिस इज AY। ठीक है, किरण जो है साडे कोल प्राप्त हुई है, इसਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦੇਤਾ AY ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਐਂਗਲ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀਜ਼ है 90 डिग्रीज। सो ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ नेक्स्ट स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है वो कर लिया है। नाउ नेक्स्ट ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੋ ਬਾਕੀ मेजर रह गए ਅਸੀਂ ਉਹ कंस्ट्रक्ट करने हैं। सो फॉर दैट जो है ਅਸੀਂ दोनों बिंदु वारी वारी से बिंदु A ਨੂੰ जो है केंद्र ਮੰਨਣਾ है ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚਾਪ ਲਗਾਣੀ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀ 4 E ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਮੰਨਿਆ ਤਾਂ 4 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀ चाप लगाओ जो कि किरण EX ਨੂੰ बिंदु किदे ते कट्टे D उत्ते कट्टे अते इसी तरह बिंदु जो साडी नेक्स्ट है A, पॉइंट A तो असी जो है एक आर्क लगानी है किन्ने 4.5 सेंटीमीटर दी जो आर्क है वो लगाओ जो कि जो साडी नेक्स्ट रे है केड़ी CY नु बिंदु केड़े ते कट्टे R, साडा R पॉइंट रह गया R उत्ते। ठीक है जी, तो ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਸਟੈਪ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜੋ ਹੈ 2 ਆਰਕਸ ਲਗਾ ਲੈਣੇ ਆ। ਆਰਕਸ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵਿਦ ਦ ਹੈਲਪ ਆਫ ਕੰਪਸ। सो फर्स्ट जो है वो ਅਸੀਂ 4 सेंटीमीटर ਦੀ ਆਰਕ ਲਗਾਣੀ, तो मैं अपनी जो कंपस है वो 4 सेंटीमीटर वाइड ओपन कर ली है। देखो ਇੱਥੇ जो है मेरी कंपस जो है वाइड ओपन हो गया 4 सेंटीमीटर। ई ਨੂੰ मैं ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਮੰਨਣਾ है और एक चाप लगा देनी है। नाउ दिस इज आवर पॉइंट, केड़ा पॉइंट है साडा डी। इस तरीके नाल ਅਸੀਂ 4.5 सेंटीमीटर जो है अपना कंपस ਨੂੰ ओपन करना है। नाउ नेक्स्ट जो आर्क लगानी है कितने सेंटीमीटर दी है 4.5 सेंटीमीटर दी। तो जो मैं ए ਨੂੰ सेंटर ਮੰਨਿਆ एंड नाउ आई विल ड्रॉ एन आर्क जो कि कितने कटेगी आर उत्ते कटेगी। सो वी हैव गॉट 2 आर्क्स जो 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर से सी लगाइया हैं साडे स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन दे अकॉर्डिंग। सो साडा जो लास्ट स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो की है कि बिंदु साडे को जो ऑब्टेन हुए हैं डी अते आर नु मिलाओ। सो हुण इस स्टेप दे अकॉर्डिंग असी डी अते आर नु मिलावांगे। सो इत्थे मैं अपने स्केल दी हेल्प नाल जो है वो डी अते आर नु देखो इत्थे मिला रही हूं। दिस इज माय पॉइंट आर और इन्हें मैं डी नाल मिलाता है। हुण ये साडे कोल एक 4 साइडेड फिगर जो है वो मिल चुकी है, तो असीं लिख सकते हैं कि इस लई प्राप्त चतुर्भुज या जो साडे कोल हुण एक कोऑर्डिनेटर बनिया है डी ई ए आर वो साडा की है लोड़ींदा या रिक्वायर्ड चतुर्भुज है। तो इस तरीके नाल असीं कंस्ट्रक्शन कर ली। सो बच्चों साडा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असीं एक चतुर्भुज ट्रू TRUE दी रचना करनी है जिथे साडी साइड जो है TRO कितनी है 7 सेंटीमीटर, RU 6 सेंटीमीटर, UE is equals to 8 सेंटीमीटर। ये साढ़े 3 साइड्स हैं ते जो दो एंगल्स हैं आपके यहाँ एंगल R is equal to 75 डिग्रीज एंड एंगल U is equal to 120 डिग्रीज। सो इस कोऑर्डिनेटर ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ रचना दे भाग लिखने हैं। तो साडा जो फर्स्ट स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो की है कि असी एक रफ चतुर्भुज जो है वो बनाना है। तो असी एक रफ चतुर्भुज बनावांगे, असी एक रफ डायग्राम ਇਹਦੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ
ਦਿੱਤੇ ਮਾਪ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਦੇਣੇ हैं। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਨਸਿਲ ਔਰ ਸਕੇਲ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ मैं चौक की हेल्प नाल ते तुसी पेंसिल और स्केल की हेल्प नाल ड्रॉ करो। असी कोई भी क्वाड्रिलेटरल फोर साइडेड फिगर क्लोज फिगर असी बना लेनी है, ठीक है जी। ते असी उहदे ते जो भी साडे मेजर्स गिवन है वो असी लिख देने हन। तां इत्थे देखो मैं ले लिया अपनी ये फोर साइडेड फिगर ते मैं इहदे जिहड़े फोर वर्टिसेस है उन्हों मैं नाम देता है TURE। सो दिस इज माय क्वाड्रिलेटरल ट्रू। ਹੁਣ मैं ਇਹਦੇ ਦਿੱਤੇ ਮਾਪ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖ ਦੇਣਾ है TR is equals to 7 centimeter, RU is equals to 6 centimeter, UE is equals to 8 centimeter और जो मेरे दो एंगल्स गिवन है वो मैं की लिख देना है एंगल R is equals to 75 degrees and angle U is equals to 120 degrees। सो जो मेरे 5 मेजर सी वो मैं ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। सो जो नेक्स्ट स्टेप जो मेरा होएगा ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫੁੱਟੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਵਿਦ ਦ ਹੈਲਪ ਆਫ ਸਕੇਲ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਜੋ ਹੈ ਐਜ਼ ਅ ਬੇਸ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੋ ਹੈ ਭੁਜਾ RU is equals to 6 सेंटीमीटर जो है वो मैं कंस्ट्रक्ट करूंगी। ਤਾਂ मैं ਹੁਣ इस स्टेप के अकॉर्डिंग जो है RU is equals to कितने सेंटीमीटर ले लिया है। देखो मैं ਹੁਣ ਇੱਥੇ इस स्टेप के अकॉर्डिंग RU is equals to 6 सेंटीमीटर ले लिया है। So my RU is equals to 6 centimeter है। ਹੁਣ ਜੋ मैं next step of construction अपना लिखना है वो की है जिवें ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ R and U ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ R ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ D ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਕੋਣ ਮਾਪਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਕਿ एंगल XRU is equals to 75 डिग्रीज ਅਸੀਂ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਂਗਲ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਬਿੰਦੂ U ਤੇ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ RUY is equals to 120 डिग्रीज। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਦੋ ਐਂਗਲਸ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਵਿਦ ਦ ਹੈਲਪ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ R ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਇਸ RU ਨੂੰ ਕੋਇਨਸਾਈਡ ਕਰਤਾ ਹੈ 0 ਨਾਲ। ਸੋ ਮਾਈ 75 डिग्री एंगल इज कितने है देखो ये दिस इज ओवर हियर ए स्केल ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ दिस इज माई 75 डिग्री एंगल। ਤਾਂ मैं ਹੁਣ स्केल ਨਾਲ जो है पॉइंट R और जो मेरा नया पॉइंट ऑब्टेन होया है मैं ना दोनों नु मिला देना है। सो दिस इज माय एंगल XRU is equals to 75 degrees। Now the next angle that I have to make is जो मैं बनाना है वो की है कि मैं U दे ऊपर अपनी जो है प्रोटेक्टर रखूंगी और मैं कोइंसाइड करूंगी RU नु विद 0 एंड मैं 120 डिग्रीज का एंगल बनाना है। ऊपर वाला स्केल देखेंगे तो दिस इज माय 120 डिग्रीज एंगल। सो मैं ਹੁਣ पेंसिल और स्केल ਨਾਲ जो ਸਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਬਟੇਨ ਹੋਇਆ 120 डिग्री एंगल ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ मैं U ਨਾਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। सो दिस इज माय एंगल RUY is equals to 120 डिग्रीज। तो ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੋ ਐਂਗਲਸ ਜੋ ਹੈ ਵਿਦ ਦ ਹੈਲਪ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰ ਅਸੀਂ ਡਰਾ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਸੋ लास्ट ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਦੋ मेजर्स रह गए ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੋ मेजर जो है ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕਰਨੇ हैं। सो ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ मेजर्स रह गए ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੋ मेजर ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕਰਨੇ ਹਨ। सो ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਲਾਸਟ टू मेजर्स जो है ਉਹਦੇ ਤੇ ਰਹਿ ਗਏ ਕਿ 7 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਆਫ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਲਿਖਾਂਗੇ दैट इज ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀਗੇ R ਐਂਡ U ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ R ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਐਜ਼ ਅ ਸੈਂਟਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਮੰਨ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਰਕ ਲਗਾਣੀ ਹੈ ਕਿੰਨੇ सेंटीमीटर ਦੀ 7 सेंटीमीटर ਦੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ चाप लगावांगे आर्क
कि किरण, क्योंकि साडे कोल पॉइंट आर चो केड़ी रे है जा रही है, वो है आर एक्स, जो कि किरण आर एक्स नू बिंदु किदे ते कटदी है, टी उत्ते कटदी है। सो हुण असी इत्थे जो है इक्के ले लिया, ते इसी तरह असी जो है नेक्स्ट जो की करना है कि असी पॉइंट जो बिंदु साडा हैगा यू ओनू लेना एज अ सेंटर। इसी तरह बिंदु यू उत्ते कितने सेंटीमीटर दी 8 सेंटीमीटर दी चाप जो है असी लगानी है, जो कि किनू जो किरण साडी यू वाई है, जो कि किरण यू वाई नू बिंदु किदे ते कटदी है, बिंदु ई उत्ते कटदी है। तो इस तरीके नाल असी 2 आर्क्स लगा देनियां हन। सो इस स्टेप के अकॉर्डिंग असी हुण आर्क्स लगाने आ। सानू पता है कि आर्क लगाने लिए असी की यूज करते हैं, असी अपनी कंपास यूज करांगे। सो फर्स्ट जो आर्क असी लगानी है वो कितनी है 7 सेंटीमीटर दी, और वो केड़े पॉइंट तो लगानी है असी आर तो, जो आर्क लगाती है। एंड दिस पॉइंट जो मार्क करांगे उसमें मैं हो जाएगा मेरा पॉइंट टी। और नेक्स्ट असी जिहड़ी है पॉइंट यू तो लगानी आर। सो मैं इत्थे स्केल दे ऊपर जो है 8 सेंटीमीटर इसनू वाइड ओपन कर लिया अपनी कंपास नू, एंड यू दे ऊपर असी एक रख के अपनी कंपास ते असी एक आर्क लगावांगे, जो कि यू वाई नू पॉइंट किदे ते कटेगी, ई दे उत्ते कटेगी। सो जो साडे 2 पॉइंट्स ऑब्टेन हुए ने टी एंड ई, दिस इज एट 7 सेंटीमीटर और ये है 8 सेंटीमीटर पे। सो जो हम साडे पॉइंट्स ऑब्टेन हुए हैं टी अते ई, तां असी की करांगे कि बिंदु टी अते ई नू मिलाओ। सो ज्वाइन कर देंगे असी टी एंड ई नू। सो देखो मैं विद द हेल्प ऑफ स्केल जो है इन दोनों नू ज्वाइन करता है। सो एक मेरे को 4 साइडेड फिगर टी आर यू ई ऑब्टेन हो गई है, इसलिए मैं लिखूंगी कि प्राप्त चतुर्भुज जो साडे कोल आई है दैट इज टी आर यू ई, और साडी रिक्वायर्ड जो क्वाड्रिलेटरल है। सो इस तरीके नाल असी ਇਹ क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट कर ਲਈ है। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਡਿਫਰੈਂਟ मेजर्स ਲਏ ਆ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ क्वाड्रिलेटरल्स ਕੰਸਟਰਕਟ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹਨ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜੋ मेजर्स ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ क्वाड्रिलेटरल्स ਕੰਸਟਰਕਟ ਕਰਨ ਲਈ। थैंक यू।